محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے. نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. ان دونوں روایتوں کو باہیکی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں. لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں. اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں. اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ڈبل بیڈ روم مکانات کے زیر التواء تعمیراتی کاموں کو فوراً مکمل کیا جائے. زیر التواء ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال. ضلع کلکٹر ٹی وی نے آن لائن شاپنگ کی وجہ چھوٹے تاجرین کا کاروبار ٹھپ. لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود خریداری نہ کے برابر. مخفل مکان پھر ایک بار سارقوں کا ٹارگٹ. 2.5 لاکھ کا سرقہ کرنے کے بعد ہلدی مرچی پاؤڈر کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے سراغ مٹانے کی کوشش. معاملہ بانسواڑے کا. اب خبریں تفصیل سے. ڈبل بیڈ روم مکانات کے زیر التواء تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کے لیے عہدیداران ضروری اقدامات کریں. ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے زیر التواء ترقیاتی کاموں پر کیا تبادلہ خیال اور دیا مشورہ. ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ساتھ ضلع کے بودھن، آرمور اور بھیمگل میونسپل ٹاؤنز میں ڈبل بیڈ روم مکانات سے متعلق زیر التواء کاموں کو جلد از جلد مکمل کرے. کلکٹر نے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار کے ہمراہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے زیر التواء ترقیاتی کاموں پر انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں بجلی، میونسپل عہدیداروں، R&B، ہاؤسنگ، پنچایت راج، انجینئرنگ عہدیداروں اور دیگر محکموں کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی
कि वो शहरी इलाकों में डबल बेडरूम वाले मकानात के ज़ेर इल्तिवा तामीराती कामों को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। चूँकि फंड्स दस्तियाब है, इसलिए उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बिजली कनेक्शन, पीने के पानी की फराहमी, सड़कों और नक्काशी के बुनियादी ढांचे के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इसी तरह उन्होंने R&B हुक्काम को हिदायत दी कि वो नामुकम्मल पुलों, सड़कों के कामों में तेजी लाए। कलेक्टर ने हर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया और ओहदेदारों को तजावीज़ दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो बुनियादी मराकिज़ सेहत, ज़ेली मराकिज़, आंगनवाड़ी मराकिज़, स्कूलों में इजाफी क्लासरूम, बैतुल खला के कामों, इजाफी कलेक्टरों के रिहायशी बंगले व दीगर की तामीर की निगरानी करे ताकि इस काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने हुक्म दिया कि अदालती इमारतों और R&B गेस्ट हाउस की मरम्मत का काम मियारी और मुकर्ररा तारीख के अंदर मुकम्मल किया जाए और हुक्म दिया कि GGH अस्पताल में लीकेज, फर्श और खिड़कियों के शीशों की मरम्मत फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। तजवीज़ दी कि इंजीनियरिंग अफसरान अपने दफातर में रहे और फील्ड लेवल पर काम की निगरानी करें। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। खेलों के फ़रोग़ से तलबा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होगी। हुकूमत ने शहर में खिलाड़ियों के लिए मुनासिब सहूलियात के साथ मिनी स्टेडियम की ज़रूरत की तरफ तवज्जो दिलाई। स्टेडियम की जल्द तामीर को यकीनी बनाने के लिए काम करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने दिया तयक़ुन। इस्लामाबाद शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में फुटबॉल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों के फ़रोग़ से तलबा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगी। जिले मरकज में खिलाड़ियों के लिए मुनासिब सहूलियात के साथ एक मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए उन्होंने हुकूमत के इल्म में लाया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो स्टेडियम की जल्द तामीर को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। रियासती हुकूमत को खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए और खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सहूलियात के साथ कोच का तकर्रुर करना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो निज़ामाबाद के बच्चों को कौमी, बैनुल अक़वामी और ओलंपिक सतह पर आने और ज़िले को मज़ीद शोहरत और शान व शौकत दिलाने में हमेशा मदद करेंगे। इस प्रोग्राम में साबिक़ कॉरपोरेटर सुधीर, बीजेपी जिला नायब सदर N लक्ष्मी नारायण दीगर भी मौजूद थे। इंडिया అంటే గ్రామీణ రూరల్ నుంచి కూడా ప్లేయర్లు డెవలప్ కావాలి। ఫ్యూచర్ లో ఒలింపిక్స్ లో అత్యధిక గోల్స్ అంటే అత్యధిక మెడల్ సాధించడమే ఖేలో ఇండియా లక్ష్యం। ఖేలో ఇండియాతో పాటు దాంతో పాటు అనేక టోర్నమెంట్లకు దాని ద్వారా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతూ ఉంది। మీరు కూడా అప్లై చేసుకుంటే తప్పకుండా ఇంకా మనం పెద్ద ఎత్తున ఇంకా చేసే అవకాశం ఉంటుంది। ఒకరోజు బదులు మనకి ఇంకా సపోర్ట్ దొరికితే టీమ్స్ పెంచి 2 days అయినా పర్వాలేదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। కనుక స్పోర్ట్స్ ద్వారా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే మనిషి ఫిట్నెస్తో పాటు హెల్దీ యాక్టివ్గా ఆ డే అంతా కూడా మనిషి యాక్టివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది। కనుక మరి ఒకసారి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ టోర్నమెంట్కు ఓపెనింగ్ సెరమనీ కానీ ఏదో సమయంలో నేను రావడం జరుగుతూ ఉంది। గత 4-5 సంవత్సరాల నుండి నిజంగా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ। तमाम मज़ामीन के असातिज़ा सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले गरीब, पसमानदा, कमज़ोर और अक़लियती तलबा की बेहतरी के लिए काम करें। स्टेट इंटरबोर्ड स्पेशल ऑफिसर D ओडियन्ना का बयान और मशवरा दिया कि असातिज़ा तालमेल से काम करते हुए बेहतर नताइज हासिल करें। रियासती इंटरबोर्ड निज़ामाबाद जिला स्पेशल ऑफिसर D ओडियन्ना ने असातिज़ा को तालमेल से काम करने और बेहतर नताइज हासिल करने का हुक्म दिया। उन्होंने शहर के खस्साब गली में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज का अचानक मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार भी उनके हमरा मौजूद थे। कॉलेज के प्रिंसिपल बुद्धिराज की सदारत में कॉलेज के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के साथ मुनाक़दा मीटिंग में खिताब करते हुए खुसूसी अफसर ने कहा कि सरकारी कॉलेज में दाखिल गरीब, पसमानदा, कमज़ोर और अक़लियती तलबा की तरक्की के लिए तमाम मज़ामीन के असातिज़ा को तालमेल से काम करना ज़रूरी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि सरकारी जूनियर कॉलेज में दाखिला लेने वाले हर तालिबे इल्म को रियासती इंटरबोर्ड कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक
पास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चूंकि कॉलेज को खुले हुए 2 माह हो चुके, इसलिए यूनिट टेस्ट कराया जाए और नंबरों की बुनियाद पर तलबा के टैलेंट की निशानदेही की जाए और तजवीज़ दी कि जो तलबा मज़ामीन में पीछे उनके लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम असातिज़ा को रियासती इंटर बोर्ड के मुकर्रर करदा टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस का इनेकाद करना चाहिए और हर एक को टाइम शेड्यूल पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमसेट जेईई मेंस में रैंक हासिल करने के लिए फिजिक्स वाला ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए और तलबा को इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। कॉलेज से गैर हाजिर रहने वालों की मोबाइल फोन के जरिए वालिदैन को मालूमात फ्राहम करने का अमल निजामाबाद से तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू किया जाए। उन्होंने कॉलेज के ग्राउंड और क्लास रूम्स का मुआयना किया और प्रिंसिपल को शजरकारी और ग्राउंड को हमवार करने और तलबा के लिए पढ़ने के लिए खुशगवार और आरामदा माहौल पैदा करने पर मुबारकबाद दी। स्टेट इंटर बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर ने तलबा से कॉलेज में होने वाली तालीम और तदरीस के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने याद दिलाया कि तलबा का मुस्तकबिल संवारना असातिज़ा की जिम्मेदारी है और कहा कि किसी भी ग्रुप में शामिल होने वाले तलबा को तमाम मज़ामीन में पास होना चाहिए और इसके लिए लगन से काम करना चाहिए। बिजली सारिफिन के मसाइल के हल के लिए सब स्टेशन पर अजाले के प्लेटफॉर्म का इनेकाद मसाइल को हल किया जाएगा। CGRF चेयरमैन ए नारायण का बयान। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर सारिफिन अपने बिलों की बरवक्त अदायगी करे तो घरों के साथ साथ ज़राई शोबे को भी मियारी बिजली की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। एडपली मंडल मुस्तकर के सब स्टेशन पर बिजली सारिफिन के अजाले के फोरम का इनेकाद किया गया। किसानों और दीगर सारिफिन ने मीटिंग में शिरकत की और अपने मसाइल CGRF के इल्म लाए। इस मौके पर CGRF चेयरमैन ए नारायणा ने कहा कि जैसे ही सारिफिन की शिकायत आती है तो बिजली के मसाइल से मुतल्लिक किसी भी मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने सारिफिन और किसानों पर जोर दिया कि वो बिजली हुक्काम से ताउन करें और मशवरा दिया कि वो वक्त पर बिल अदा करें और बोर की मोटर्स के लिए कैपेसिटर्स लगाए। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म बिजली के सारिफिन के मुनसिफाना मसाइल के हल के लिए काम करेगा और इस हवाले से सारिफिन को किसी वहम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर ट्रांसफार्मर्स में कोई मसला दरपेश है तो वो उसको महकमा बिजली के इल्म लाए और किसान खुद उसकी मरम्मत ना करें। इस प्रोग्राम में CGRF अरकान కృష్ణ కిషన్ దిగర్ भी मौजूद थे। చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలే, పెద్దగా ఏం లేవు. అవి అనుకున్న తడుగానే మోస్ట్లీ 1 or 2 వీక్స్లో ఇవి సాల్వ్ చేసేసి కన్సూమర్స్కి సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్లో మేము పనులు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కన్సూమర్స్ కూడా రైతాంగం కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ ఫీల్డ్లో పనులు చేసుకుంటున్నారు. మంచి వర్షాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి క్రాప్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి తరుణం లేదంటే అందరూ కూడా రైతాంగం కూడా మరి కెపాసిటర్స్ బిగించుకొని అటు డిపార్ట్మెంట్కు తర్వాత అటు వాళ్ళ మోటార్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరగడానికి కూడా మరి దోహదపడడానికి వాళ్ళ కెపాసిటర్స్ వాలంటరీగా వాళ్ళు పెట్టుకోవాలని మరి సందర్భంగా అందరూ కూడా जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दीगर ओहदेदारान के हमरा EVM गोदाम और पुलिस की हिफाजती इंतजामात का किया मुआयना। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार की हमरा जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में EVM गोदाम का दौरा किया। फील्ड दौरा उमूमी मुआयने के अमल के हिस्से के तौर पर किया गया। EVM गोदाम पर चस्पा मोहरों का मुआयना किया। EVM गोदाम पर पुलिस की हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा AO प्रशांत, इलेक्शन डिपार्टमेंट का अमला सात्विक, विजेंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से अब्दुल मोइस के लिए सदरम स्लैट बुकिंग। अवाम ऐसी तंजीमों से फ़ायदा उठाए, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी की अपील। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से अब्दुल मोइस के लिए सदरम स्लैट बुकिंग। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया मालापली निजामाबाद में अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि सारा फाउंडेशन निजामाबाद जो गुज़िश्ता कई बरस से शहर व अतराफ़ के माज़ूरीन में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत माज़ूरीन की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहने वाली फलाही व रफ़ाही तंजीम है। अब्दुल मोइस जो काफ़ी अमराज के शिकार है, उनको सहारा देने के लिए डॉक्टर आसिम साहब की रहनुमाई में सदरम सर्टिफिकेट स्लैट बुक की कार्रवाई अंजाम दी गई,
जिसके जरिए इंशाअल्लाह हुकूमती स्कीमात व मराद से इस्तिफादा की राह हमवार होगी। लिहाजा हम शहर की दीगर अवामुन नास से अपील करते हैं कि इस किस्म की तंजीमों से फ़ायदा उठाएं और हम ममनून व मशकूर डॉक्टर आसिम और उनकी पूरी टीम कि जिन्होंने कौम व मिल्लत की मजमूई तौर पर खिदमत का आगाज करके इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने का काम अंजाम दे रहे। अल्लाह पाक शर्फ कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मौके पर मौलाना एजाज कासमी, उस्ताद दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली ने भी सारा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। हमारे भाई जनाब अब्दुल मुईस जो बहुत सारी अंदरूनी और ज़ाहिरी बीमारियों से मुतासिर हैं और उनके बाज़ाब्ता तौर पर किफ़ालत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां पेश आ रही थी, तो आज हम लोगों ने हमारे डॉक्टर आसिम साहब से मुलाकात की, उनसे फिर गुजारिश की कि इनके लिए सदरम सर्टिफिकेट स्लॉट बुकिंग और फिर इस सिलसिले में उनकी कुछ रहनुमाई पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा फाउंडेशन जो गुज़िश्ता बरसहा बरस से हमारे शहर में फलाही और मिली खिदमत अंजाम देता आ रहा है और जो माजूर अफराद होते हैं उनके लिए बतौर ख़ास ये लोग अपनी खिदमत पेश करते हैं। उन्हीं से रब्ता करने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज उनका सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया और मज़ीद जितने भी लोग शहर के अंदर माजूर हैं उनसे भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो डॉक्टर आसिम साहब से मुलाकात करके सारा फाउंडेशन के तहत अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीमात से भी उनका फ़ायदा हो और फिर जो मुराद और रियायतें हुकूमतों की तरफ से मिलती हैं उस सिलसिले में भी उनकी रहनुमाई हो जाती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे आसिम साहब को और उनकी पूरी टीम को और उनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम यही दुआ करते हैं सारा फाउंडेशन और उसके तमाम जिम्मेदारों के लिए, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। मुखफ़िल मकान की खुफल शिकनी करते हुए सारिकों ने 2.5 लाख नकद का किया सरका। बांसवाड़ा में पेश आया वाक़या, पुलिस कर रही तहक़ीक़ात। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में सहाफ़ी कॉलोनी में एक वाक़या पेश आया। मुतासिरा खातून शौकना अपने हेल्थ चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल से रुजू हुई। 5 रोज बाद जब वो बांसवाड़ा वापस आई और अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि ताला टूटा हुआ है और 2.5 लाख का सारिकों ने सरका किया। उसने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। इस दौरान चोरी की वारदात करने वाले सारिक मौके पर मिर्च और हल्दी का पाउडर छिड़क कर फरार हो गए ताकि फिंगरप्रिंट का कोई सबूत न मिल सके। पुलिस दिगर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रही। इस मौके पर मुतासरा खातून शौकना ने बताया कि वो 5 रोज कबल अपने हेल्थ चेकअप के लिए हैदराबाद गए हुई थी। उसने सोना खरीदने के लिए घर में रकम जमा की हुई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो सारिक सरका करके फरार हो गए। ప్రెస్ కాలనీలో ఆరోగ్యం బాగాలేక హైదరాబాద్ పోయినా డబ్బులల్లా గోల్డ్ కోసం అందుకోసమని నేను ఆరోగ్యం మంచిగా లేకపోయినా వచ్చేవరకు దొంగలు పడ్డారు। దాని మీద బట్టల మీద అన్ని కారం చల్లిండ్రు, ఇల్లంతా కారము పసుపు చల్లిండ్రు। 2 లక్షలన్నర। ऑनलाइन शॉपिंग छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचा रही। ऑनलाइन कारोबार की वजह से कारोबार में कमी आ रही। ताजरान ने की शिकायत। जगतियाल जिले के कोरटला हलके में राखी ताजरान वो छोटे ताजिर परेशान हैं क्योंकि खवातीन राखी खरीदने नहीं आ रही, क्योंकि हर साल ताजिरों की तादाद कम हो रही। कारोबार और ताजिरों को मुश्किलात का सामना है। हर कोई मुख्तलिफ किस्म का सामान ऑनलाइन खरीद रहा। ताजिरों को शिकायत है कि लाखों रुपए की सरमायाकारी और पड़ोसी रियासतों से राखियां खरीदने के बाद भी उन्हें मुतवक्के सतह पर खरीदारी नहीं मिल रही। वो परेशान है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से गुज़िश्ता 5 सालों से कारोबार में कमी आ रही। నేను ప్రస్తుతం మెట్పల్లి గత 50 సంవత్సరాల నుంచి మెట్పల్లి పట్టణంలో రాఖీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాను। ఈ 15 సంవత్సరాల నుంచి రోజు రోజుకు మా రాఖీ వ్యాపారాలు తగ్గిపోతున్నాయి। మేము చాలా దూరం నుంచి వ్యయ ప్రసారాల గురించి కలకత్తా, అహ్మదాబాద్, గుజరాత్ లాంటి రాష్ట్రాల నుంచి రాఖీ తీసుకొచ్చి వ్యాపారం చేస్తుంటాం। ఈ సంవత్సరాలు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మా వ్యాపారం క్షీణిస్తుంది।
ఎందుకు క్షీణిస్తుంది అన్న దానికోసం మేము లెక్కితే ఏర్పడుతుంది ఏంటంటే మొత్తం ఆన్లైన్ వ్యాపారం అయిపోయిందండి. ఆన్లైన్ వ్యాపారస్తులు ఎక్కడో ఉండి ఎక్కడో వ్యాపారం చేస్తారండి. మేము ఇక్కడే ఉంటాము, లోకల్లో ఉంటాము, మీతోటి కలిసి ఉంటాము, అందరితో మిత్రులు మాకందరూ. మీ అందరూ కూడా మమ్మల్ని దయచేసి సహకరించి మా వ్యాపారానికి కొంచెం కృషి చేయండి. నా రాఖీ వ్యాపారం అనే కాదు, ప్రతి వ్యాపారం కూడా మీరు దయచేసి లోకల్నే కొంటే బాగుంటుంది. మాట్లాడి చిరు వ్యాపారాలను కాపాడండి. మీరు ఆన్లైన్ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించకండి, లోకల్ వ్యాపారస్తులను ప్రోత్సహించండి, మాట్లాడి వాళ్ళని బ్రతికించండి. निर्मल और आदिलाबाद अजला में डिग्री और पीजी कॉलेजों को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दायरे कार में लाने का पीडीएसयू ने किया मुतालिबा और शिकायत की कि इन अजला के तलबा को सर्टिफिकेट्स और दीगर ज़रूरियात के लिए काकतिया यूनिवर्सिटी तक 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है। पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने मुतालिबा किया कि निर्मल और आदिलाबाद अजला के डिग्री और पीजी कॉलेजों को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दायरे कार में लाया जाए। इस मौके पर पीडीएसयू के ज़ेरे एहतमाम तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि निर्मल आदिलाबाद अजला से ताल्लुक़ रखने वाले डिग्री और पीजी तलबा को सर्टिफिकेट्स और दीगर ज़रूरियात के लिए काकतिया यूनिवर्सिटी तक 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है और तलबा को काम ना होने की वजह से वहाँ रहने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी दोनों अजला के 100 किलोमीटर के अंदर है और उन्होंने यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के दीगर कोर्स के साथ तौसी देने का मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू लीडरान प्रिंस, देविका, राकेश, राजेश दीगर भी मौजूद थे। అదేవిధంగా నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి డిగ్రీ మరియు పీజీ కళాశాలలను తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో కలపాలని యూనివర్సిటీ పరిధి కిందికి తీసుకురావాలని పీడీఎస్గా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నిర్మల్ అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ పీజీ కళాశాలలు ప్రస్తుతం కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయి. కాకతీయ యూనివర్సిటీకి విద్యార్థులు వారి మెమోలకు కానీ ఇతర అవసరాలకు వెళ్ళాలంటే దాదాపు 200కు పైగా కిలోమీటర్లు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆ రోజు పని కాకపోతే అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది. అనేక ఇబ్బందులు ఆ రెండు జిల్లాల విద్యార్థులు ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ నిర్మల్కు సంబంధించినటువంటి జిల్లాల విద్యార్థులకు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం 100 కిలోమీటర్ల లోపే ఉన్నది కావున అక్కడ ఉన్నటువంటి అఫిలియేషన్ను తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డిగ్రీ పీజీ కోర్సులను కూడా ఫీజులను తగ్గించాలి. ఏదైతే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సులను కూడా రెగ్యులర్ చేయాలని మేము యూనివర్సిటీ అధికారులను ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। डबल बेडरूम मकानात के ज़ेर इल्तिवा तामीराती कामों को फौरन मुकम्मल किया जाए। ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों पर तबादला क़याद, जिला कलेक्टर टीवी ने। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह छोटे ताजरीन का कारोबार ठप, लाखों रुपए की सरमाकारी के बावजूद खरीदारी ना के बराबर। मुखफ़्फ़ल मकान फिर एक बार सारिकों का टारगेट, 2.5 लाख का सरका करने के बाद हल्दी मिर्ची पाउडर का छिड़काव करते हुए सुराग मिटाने की कोशिश, मामला बांसवाड़े का। प्रवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा नस्द, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।